شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ جب میں نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی اور اپنا ہوش سنبھالنا شروع کیا تو مجھے میرے مذہب نے اور میرے معاشرے نے یہ بات کھول کر سمجھائی کہ وہ شخص جس نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کا باپ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس شخص نے جس نے آپ کو بیٹی دی وہ بھی آپ کا باپ ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جس نے تمہیں ایک حرف بھی سکھایا خیر کا وہ بھی تمہارا باپ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سچ ہے جو ہمیں سکھایا گیا اور ہم نے اس پر یقین کیا، کیونکہ میرا مذہب بھی یہ کہتا ہے، تو یقین رکھیں اس معاشرے کا ہر استاد پوری قوم کا باپ ہے، یعنی اس کا اکرام وہی ہونا چاہیے جو میرے اور آپ کے گھروں میں اپنے والد صاحب کا ہوتا ہے۔ نارملی ہم اس قسم کی گفتگو نہیں کیا کرتے، لیکن اس کو کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور کھول کر بتاؤں؟ چلیں بتاتا ہوں۔ مزید کھولیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس ریاست کے ہر بیوروکریٹ کا باپ وہ استاد ہے جسے وہ پڑھ کر آیا ہے، اس ریاست کے ہر سیاستدان کا باپ بھی وہ استاد ہے جسے وہ پڑھ کر آیا ہے، لیکن ناہنجار اولاد بھی پھر اسی معاشرے میں ہوتی ہے، اسے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب اس ریاست کے امین وہ سرکاری ملازمین ہوا کرتے ہیں جن کے پاس اس ریاست کو پالنے پوسنے اور خدمت کرنے کا کام ہوتا ہے، یعنی وہ ملازم جس کے قلم سے کام کرنے کے نتیجے میں وڈا افسر ٹھنڈے کمرے میں بیٹھتا ہے اور وڈا افسر ٹھنڈی گاڑی میں سفر کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں یہ ان کی دم سے سارا نظام چل رہا ہے۔ چلے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں سے اکثر افسر بیکار خاص ہوا کرتے ہیں۔ کون ہوا کرتے ہیں؟ افسر بیکار خاص، اور ان کو چلانے والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو ان کے پیچھے بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ان تمام پنجاب کے سرکاری ملازمین کی بےبتا درد تکلیف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نگران حکومت نے، دوبارہ کہوں گا نگران حکومت نے، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں، جس کے پاس مینڈیٹ ہو وہ گورنمنٹ نہیں، نگران گورنمنٹ جس کا کام الیکشن کرانا اور چلے جانا تھا، ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے پیٹ پر لات ماری ہے نگران گورنمنٹ نے۔ اور چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، مجھے معاف کیجئے گا محسن نقوی صاحب، میرے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نکل گیا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہیں، تو محسن نقوی صاحب کی اپنا ماضی جو ہے میرے لیے وہ واجب الاحترام ہے، ذہن میں کہ انہوں نے صحافت میں بڑا سارا کام کر لیا۔ ماضی میں آپ حکم اذان کے تحت اذان دیا کرتے تھے، لیکن اس کرسی میں مسئلہ ہے، اس پر جو بیٹھتا ہے اس کا سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ تو آج کل اس مرض کا آپ شکار ہیں، اس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کے لیے آسانی کا معاملہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر کیا نام ہے؟ مختار گجر جی۔ کیا ذمہ داری ہے؟ میں چیئرمین ہوں لاہور گیگا کا اور ایپ کا لاہور ڈویژن کا صدر ہوں۔ کیا تکلیف کیا ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی اور آپ یہاں پر گرمی میں پورا دن بیٹھے، ابھی رات کو ننگے آسمان تلے آپ نے بیٹھنا ہے؟ تکلیف ہمیں یہ ہے کہ ہماری 2 وقت کی عزت کی روٹی جو تھی، نوالا ہمارے بچوں کا، وہ بھی یہ نگران وزیر اعلیٰ چھیننے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے نوٹیفیکیشن ہیں جو اس نے کر دیے ہیں۔ ہماری لیو انکیشمنٹ کا تھا، وہ 14,000 15,000 20,000 ایک ملازم کو ملتا تھا ریٹائرمنٹ پہ، وہ اس نے ہم نے تو سنا تھا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، سر آپ ایسے تو نہ کریں۔ صرف ایک نوٹیفیکیشن میں
छुट्टी वाले दिन इसने नोटिफिकेशन किया है बगैर हमारे स्टाफ के। उन्होंने ये बताया होगा कि वो छुट्टी पर नहीं होते। हाँ, और संडे वाले दिन वो निकाला है और गवर्नर से 2 घंटे में साइन करवाए हैं और हमारी छुट्टी करवा दी है, हमारा मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। और जो इन्होंने बजट में जो अनाउंस किया था 35%, हम बड़ी मुश्किल में वहाँ इस्लामाबाद हाउस पहुँचे, पता नहीं कैसे बंदा पहुँचता पार्लियामेंट हाउस, आपकी तनख्वाहें बढ़ी या नहीं बढ़ी? वहाँ पे हमें 35% का बताया गया गोरख धंधा जो इन्होंने बजट में पेश किया है, और यहाँ पर आगे हमें बता दिया गया है जो हमारा 20% 25,000 बढ़ता था वो 2,000 पे ले हैं इनिशियल पे बिल्कुल इनिशियल। हाँ जी, इनिशियल पे पंजाब गवर्नमेंट, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट, KPK ने अनाउंस कर दिया है, सिंध ने कर दिया है, आज़ाद कश्मीर ने कर दिया है, गिलगित बल्तिस्तान ने कर दिया, मरकज़ ने कर दिया है, लेकिन इस जो मोहसिन नकवी साहब बड़ा काबिल एहतराम नाम है, लेकिन सब लोगों के एक आवाज़ है कि मोहसिन नकली, क्योंकि इन्होंने बड़ा जुल्म किया है। आज तक 72 साल कानून किसी ने चेंज नहीं किया था, ये मोहसिन नकवी ने लोगों के गलों पर छुरी चलाई है और माशी कत्ल किया है। हिकमत क्या बताते हैं इस साइंसी फार्मूले की? कोई हिकमत भी सर हिकमत ये बताते हैं कि एक 5 साल जिसकी सर्विस है सेनेट के चेयरमैन की, उसको करोड़ों रुपए की मराद दी जा सकती हैं। और वो चेयरमैन है, वो बेचारा उस्ताद थोड़ी ना है, और वो बेचारा क्लर्क थोड़ी ना है, वो बेचारा मुलाजिम थोड़ी ना है, वो सेनेट का चेयरमैन है। चेयरमैन है सर, जो 40 साल अपनी जिंदगी की पूरी जवानी इस गवर्नमेंट को इस सर्विसेज में दे देता है, उसकी पेंशन और सर्विसेज खत्म की जा रही हैं। अनफॉर्चुनेट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, इस्लामाबाद से मैं आया हूँ। ठीक हो गया तो सारे मुलाजमीन ही नाराज होगा? ऐसा माजी में तो कभी नहीं हुआ, कोई एक आधी यूनियन नाराज होती, सारी रोस गए यार। मैं बात से अपने पंजाब के मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं और इस अज़म के साथ हैं कि कोई FIR होती है, गिरफ्तारी होती है, लाठी चार्ज होता है, 10 दिन तक भी बैठना है तो मैं अपने कायदीन, क्योंकि मैं मरकज़ी रहनुमाओं में से भी हूँ, वफाक की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं और यहाँ पे आखिरी दम तक हम बैठेंगे। वो तो नहीं होगा कि आप इन्हें बिठा के खुद पतली गली से निकल जाएं? ये ऐसा तो माजी में कभी नहीं हुआ, वफाक के अंदर ये मिसालें मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरे मुलाजमीन भाइयों को किसी को लगता है कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या इसमें गिरामी? बशीर बड़ैत जी, पंजाब टीचर यूनियन पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। तो उस्ताद हो? हम उस्ताद क्या करें यार, आपके तो ये गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है ना जो इलेक्शन करवाने के लिए आई है, इसने आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वालदैन जो होते हैं, तो देखें हमारे जो पेंशनर हजरात हैं वो हमारे वालदैन हैं, वो बूढ़े हैं, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और मरकज़ ने 17.5% उनकी पेंशन बढ़ाई है, इन्होंने 5% बढ़ाई है। जुल्म की इंतहा है। फिर सर्विस रूल्स को तब्दील करने का इनके पास मैंडेट ही नहीं। रियासत है माँ के जैसी, रियासत माँ की जैसी है, तो भाई वो तो माँ की तरह आपको पालना तो चाह रहे थे। आप अच्छी तरह जानते हैं, सहाफ़त से आपका तल्लक है कि ये पाकिस्तान बनाया तो उस्ताद ने बनाया। सर सैयद अहमद खान उस्ताद था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस्ताद था, अल्लामा इकबाल उस्ताद थे, तो साथीज़ा ने और नौजवानों ने, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के नौजवानों ने इस मुल्क को बनाया। और बनाने वाले क्या उस्ताद को एक नौकर के तौर पर ट्रीट तो नहीं किया जा रहा? कहीं पे बुरा ना मनाइएगा किसी को मेरा सवाल गलत लगे, मुझे कुछ नजर आ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हैसियत है मरकज़ी सदर पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन पंजाब और चीफ कोऑर्डिनेटर लगेगा। बात सिंपल सी ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए इनके पास खजाना खुला है और उनको वो बड़े अफसर फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ दे रहे हैं, और हम सरकारी मुलाजमीन और ख़ुसूसी तौर पर कौम के मेमारों के लिए हर गैर तदरीसी ड्यूटियाँ साजा से लेते हैं और बजट के बारे में ये कहते हैं। फिर हमारे वहाँ एहतजाज करने पर पार्लियामेंट हाउस के सामने सागदार ने ये बात मान ली कि इनकी 35% और 30% तनख्वाह बढ़ा दें। सारे सूबों ने उस पर अमल किया। ये पंजाब का वज़ीर आला ये शाह से वफादार ये ज़ाहिर करना चाहता है। इसका मैंडेट क्या है? 90 रोज़ के लिए आया था, अब ये गैर आइनी है। गैर आइनी आपको एक तरीका बताऊं जी, ऑन एयर बता दूं जी। आप एक काम करें जी, आप कहें कि हम हर उस बंदे की मंजी ठोक के रखेंगे जो बंदा निगरान सेटअप के जाने की बात करेगा, आपकी तनख्वाहें बढ़ती देखना।
इंशाअल्लाह हम ਇਹ अपना ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ इंशाअल्लाह ਵਧਣਗੀਆਂ पंजाब के तमाम सरकारी 8 लाख मुलाजिमीन अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। जब ये वापस आएंगे, ये समझता है नकवी कि मैं शायद सारी उम्र के लिए रहूँगा, गहराई सारी उम्र के लिए तो कोई भी नहीं रह सकता भाई, आज तक कोई रहा है? तो हम ये धरना दे बैठे हैं, हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे। और नकवी साहब को बताना चाहते हैं कि पूरे पंजाब के अजला बंद हो चुके हैं। हम असातिज़ा ने ये बड़ी तकलीफ की बात है। एंटी डेंगी एक्टिविटी का आज से हमने बाइकआउट कर दिया है। करवा ले एंटी डेंगी एक्टिविटी, किससे करवानी है? साजा से करवानी है। हमने बाइकआउट कर दिया है। हमारे 17 से लेके 20 स्केल तक के प्रिंसिपल साहबान ने इलेक्शन ड्यूटी का भी बाइकआउट करने लगे हो? वो तो पहले नहीं हो रहे। इंशाअल्लाह जब भी होंगे हम हमारे बगैर कौमी ये नेशनल सेंसस की जो ड्यूटी है, ये कभी इन्होंने ये हमें कहते हैं कौमी फरीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? ज़ाकिरुल्लाह बुखारी। ज़ाकिरुल्लाह बुखारी। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से ही। मसला मसला यही है कि हमारी तनख्वाहें जो बढ़ानी थी। करते क्या हैं? CNW में मैं क्लर्क। CNW में? जी जी। तो ये तो झंडी दिखा दी। 100% दिखा दी। हम तो यहाँ देख रहे हैं, बंदा भी आपके सामने, एक बंदा भी बेहोश हो गया है, उसको डबल में भेजा हमने भी। अब पता नहीं आगे क्या होता है। दोस्त गए हैं साथ उसके, अल्लाह उनकी जान ईमान की तो हिफाजत। यही होना है खैर यहाँ पर अब जो नज़र आ रहा है। इस गर्मी में हम यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट कहती है कि जनाब कोई नहीं, हफ्ता 2 हफ्ते बैठे रहने दो, कोई गल नहीं, उस तो बाद देखेंगे फिर। नहीं तो फिर तो हम बैठे हैं इंशाल्लाह यहाँ पर। कितने और मरेंगे भी, पहले भी शहीद हुए, यहाँ पर ही होंगे। इंशाल्लाह नहीं जाएंगे हम यहाँ से, किसी सूरत में नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल दे दिए? कितने साल दे दिए? 33 साल दे दिए। और 33 साल बाद आज एहतजाज कर रहे हैं। हालियात कितना को कमा लिए? काफी सारे कोई एहसास बना लिए हैं? मेरा तो खुद अभी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, किराए पे। ये तो आप हमें बता रहे हैं ना, वैसे जो एहसास बनाए हैं वो चेक कर सकते हैं, मेरा अकाउंट भी चेक कर ले, जीरो होगा। आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। बिल्डिंग डिपार्टमेंट जी। में। आपकी भी तनख्वाहों का मसला? बिल्कुल मसला है। हमारी अब रिटायरमेंट सर्वे है, इनकैशमेंट पे आके मसला बना दिया, ग्रेजुएटी में मसला बना दिया। जो पैसे मिलने थे, बच्ची की शादी करनी थी बच्चों की, वो नहीं हो रही। क्या करेंगे? घर बहुत दूर है, घर बहुत दूर है। उनके घर बने हुए हैं, सागडार का घर बना हुआ है, उसने कहा है इनकी सालाना इंक्रीमेंट बंद करो। शेम दी है उनको उसके ऊपर। जब वो आया और 10 साल की वो अपनी दहाई ले गया, उसके लिए कुछ नहीं, कोई कानून नहीं। हमारे लिए ये कानून है कि 1 साल के 500 रुपये मिलने हैं इंक्रीमेंट के, वो भी गए, वो भी बंद कर दिए हैं। वो कह रहे हैं वैसे इमेजिन करें एक लम्हे के लिए, मैं सारों से ये कहूँगा, हर तगड़ा एक लम्हे के लिए सोचे कि वो एक काम करता है, कोई भी काम करता है, या कोई मुलाजमत करता है या कोई बिजनेस करता है, और वो बेटी की शादी इस वजह से नहीं कर पा रहा कि उसके पास बेटी की शादी के लवाजमात पूरे करने के पैसे नहीं हैं। माजी में ठीक थे, अचानक से ऊँट ने करवट बदली, जैसे अभी बदली, और उसके बाद वो बेचारा सड़क पर आ गया। एक लम्हे के लिए मोहसिन नकवी साहब, आप सोच कर देखें क्या बीतेगी। शहबाज साहब, आप सोच कर देख लें। आप तो सुना है कि काफ़ी हमदर्द हैं गरीब के। सुनना होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र अली खान सूबाई सदर आपका पंजाब। ज़फ़र अली खान सूबाई सदर आपका पंजाब। जी जी ज़फ़र साहब। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। यहाँ जुल्म भी बढ़ता जा रहा है और खून भी बहता जा रहा है। आज मैं मुहतरम जनाब वज़ीर आला पंजाब को ये बाबर करा देना चाहता हूँ कि जो जुल्म है इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। इन्होंने जो हमारी माशी कत्ल किया है, मैं ये समझता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन पर जो शब खून मारा है, उसकी मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। और आपके इस TV चैनल की वसासत से मैं वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि वो नोटिफिकेशन फिल फ़ौरन वापस लिया जाए। अदरवाइज़ इंशाल्लाह आप देखें, हमें 2 माह भी बैठना पड़ेगा तो हम इंशाल्लाह बैठेंगे, उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारा ये नोटिफिकेशन वापस। गर्मी बहुत शदीद है, गर्मी बहुत है, हब्स भी है, इंशाल्लाह फैमिलीज भी हैं, इंशाल्लाह तनख्वाहें बंद कर देंगे फिर। कोई बात नहीं, अल्लाह वारस है, पहले ही बंद कर दिया सर। इस तरह है कि अब जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, इस तरह है कि मैं 17वीं ग्रेड का ऑफिसर हूँ। मेरी जो मुझे ग्रेजुटी मिलनी थी, लमसम जो मुझे पेंशन मिलनी थी, वो मिलनी थी 44 लाख रुपया।
वो मुझे मिल रही है 18 लाख रुपया। पेंशन जो पर मंथ मुझे मिलनी थी वो मिलनी थी 90,000 रुपया, वो मुझे मिल रही है 36,000 रुपया। और जो मेरी लीव एनकैशमेंट मिलनी थी वो मिलनी थी मुझे 14 लाख रुपया, वो मिल रही है 5,40,000 रुपया। इस तरह है कि हर सरकारी मुलाजिम का एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं अपनी बच्चियों का फ़र्ज़ अदा करूँगा। सब कुछ हवा में, मैं अपनी बच्चियों का फ़र्ज़ अदा करूँगा। मकान बनाना तो दूर की बात है, खुदा की कसम हम तो अपनी बच्चियों के फ़र्ज़ भी अदा नहीं कर सकते। जुल्म इस आदमी ने आज ये मतलब कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है। वसाइल की अगर बात करें तो अभी आज से 2-3 दिन पहले तमाम डीसी साहबान को फॉर्च्यूनर गाड़ियां लेके दी हैं। उन्हें जिला सीधा रखा है फॉर्च्यूनर गाड़ियां लेके दी हैं, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं थी। उनके लिए तो इनके पास वसाइल होते हैं, उनको देने के लिए तो इनके पास वसाइल होते हैं। जब ये गरीब मुलाजमीन की बात होती है तो उस वक्त उनके पास वसाइल नहीं होते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। यानी पंजाबी की एक मिसाल है, अन्ना वंडे रेवड़ियां हट के घर दियां नूं अपने घर, ये वही तो नहीं हो गया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਇੰਨੀ ਕਰੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, छोड़ दे, निजी बात नहीं करनी। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਪਕਾ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ हक है भाई, आपने सिर्फ रोटी मांगने इस कौम के लिए खिदमत की है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कहाँ से आए हैं और क्या दर्द है, तकलीफ क्या महमूद है? हसन, मैं पंजाब टीचर यूनियन डिस्ट्रिक्ट कसूर का प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे मुतालबात 2-3 ही हैं बस। लीव इनकैशमेंट जो कि हमारा हक है वो हमसे छीन लिया गया गैर आईनी तरीके से। और जो वफाक की तर्ज पर इन्होंने वादा किया था भी हम आप लोगों को वफाक के मुताबिक तनख्वाहें देंगे, मगर वो हमारे साथ जुल्म हुआ। ये वादा जी मोहसिन नकवी साहब ने कहा था। और मोहसिन ये हम मुलाजमीन से कहा था जब इस्लामाबाद में हमारा ये जो धरना हुआ था, तब उन्होंने कहा था भी वफाक की तर्ज पे आपके साथ होगा। KPK में भी हो गया, सिंध में भी हो गया, वफाक में भी हो गया, बाकी 2 सूबों में भी। और हमारे साथ ये हुआ, अब हमारी इनिशियल बेसिक पे वो चला गया। अगर वो उनको परसेंटेज को लाएंगे वो सिर्फ 7% बनती है। और ये जुल्म अजीम। और मोहसिन नकवी 35% आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप 6-7%। वो जब उसे इनिशियल पे जाएगा ना 7-8% बन जाना है, तो वो क्या मोहसिन नकवी साहब के लिए पैगाम है, कुछ तो दुनियादारी रख, भावें प्यार बाजारी रख, ਉਂਝ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੱਖ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੋਹਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਵੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਤੇ ਨਕਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਦਾਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ। नाज़रीन, लोगों के ये जज्बात हैं, उनकी तकालीफ हैं, उनकी परेशानियां हैं, लेकिन ये सिर्फ तब ही कारामद हो सकती हैं। हमारे आने का यह मकसद फौत हो जाएगा अगर ये किसी बहरे के कानों के पर्दे पर गिर गई, किसी अंधे की आंखों के पर्दे पर गिर गई, या किसी ऐसे शख्स तक पहुंच गई जो शायद अफसर बेकार ख़ास हो। लेकिन अगर ये सुनने वाले के कानों पर उतर गई तो यकीन माने ये बहुत खूबसूरत तब्दीली ला सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन अपनी बिपता, दर्द, तकालीफ लेकर आए हैं, लेकिन 2 दिन से ये एक जानिब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने बैठे हुए हैं, उधर थोड़ा सा ही आगे जाएं तो मास्टर पोस्ट ऑफिसर का दफ्तर है, वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। सो इस रोड पर
छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी टोलियों की सूरत में हज़ारों लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और पूरा दिन शदीद तपती गर्मी में भी इस मेट्रो के साए तले ये मौजूद रहे हैं। अभी बरसात का मौसम है, बारिश शुरू होगी तो कौम के असातिज़ा भी भीगेंगे, उनकी फैमिलीज़ भी भीगेंगी। मैं बैठेगी इससे ज़्यादा आगे की सर मैं तमाम सरकारी मुलाजमीन या नाकों से लकीरें निकालेंगे, लेकिन कुछ लोग दाएं बाएं खड़े सिक्योरिटी के लोगों से, दाएं बाएं फिरते इंफॉर्मेशन देने वाले लोगों से पूछते रहेंगे, हाँ भाई 10 किन्ने बंदे रह गए ने, किन्ने आए सान, किन्ने टुर गए ने, सवेरे किन्ने आएंगे। सर खुदा के लिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान नीड्स स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मेरे आबा और आपके आबा के खून से हासिल किया ये वतन जो है ये मुश्किल में डूब जाएगा, मुश्किल और तकलीफ में चला जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर अस्सलाम। बाय प्रोफेशन क्या है? मैं ऑल पाकिस्तान टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन फेडरेशन पंजाब का सूबाई सदर हूँ। Very good. बशारत हुसैन। जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, एपका पंजाब है और स्पेशली लाहौर हज़ारों के लोग यहाँ पर हैं सर। जी लाखों पेंशनर यहाँ पे जमा है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे जमा हैं और यकीन मानिए यहाँ से एक बंदा भी नहीं हिला। कोई सुनता है आपकी बात? अभी तक इन ईवानों में जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों की मराहत ली हैं, जिन्होंने 4 साल बाद आके 75 करोड़ रुपया ले लिया है, उन्होंने भी नहीं सुना। जो इन्होंने सरकारी मुलाजमीन के साथ वादे किए थे, जो गरीब बूढ़े दवाई खाने वाले पेंशनों के साथ वादे किए थे, इन्होंने जुल्म के पहाड़ उड़ा दिए हैं। आज पेंशनर बेचारा रुल गया है सड़कों पे चौकों में चौराहों में भीख मांग रहा है। बारे में नाज़रीन कहा जाता था सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट पे कि यार उसकी एक बुढ़ापे का सहारा होता है कि उसकी एक बजी इनकम आ रही होती है, तो उसको बेटी बेटों के अहले इलाका की मोहताजी नहीं होती, चूँकि उसने सारी उम्र रियासत की दी होती है तो अब रियासत उसको पाल रही होती है। लेकिन हालात इधर भी पतले लग रहे हैं। इनके तो सर में सफ़ेद बाल हैं, ये बेचारे अपनी गुजार चुके हैं, शायद इनकी बात आपको ना समझ आए। ये काले बालों वाले भाई साहब खड़े हैं, इनकी समझ के देख लेते हैं, शायद इनकी किसी को समझ आ जाए। पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सर बिस्मिल्लाह। और मैंने 2 चीज़ें सिर्फ बात करनी, बहुत सारी बातें जो पहले हो चुकी हैं, कोशिश होगी कि वो ना करूं। एक नई बात यह है कि एक सवाल आप मीडिया भी उठाता है, सारे लोग उठाते हैं कि नौजवान हमारा मुल्क से बाहर जा रहा है। अब ये पढ़े लिखे नौजवान, मैं कहता हूँ जिंदा पब आड़े और टुरिया जा रहे हैं जी, इसका नहीं आड़ा वो खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा इसी वजह से है कि देखें, एक जो बिल्कुल थोड़ी महंगाई 35% तक बढ़ चुकी है और ये अब आसमान की बुलंदियों को छू रही है, लेकिन जो इस हिसाब से हमारी तनख्वाह है वो बढ़ाई नहीं जाती। अगर वादा होता है तो पूरा नहीं होता। दूसरा मेरी ये बात थी, ये नौजवान जो यहाँ रहे, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो इस एजुकेशन सेक्टर में आता है, हेल्थ में आता है, तो वो कुछ अपनी सर्विसेज देगा। अगर उसको ये पता चले कि मेरा घर जो पुरस्कून है, घर ही पुरस्कून नहीं है, तो वो कैसे सर्विस देगा? सर खुंडी छुरी रखेगा डाबे जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ, बिल्कुल जैसे मीडिया जेड़ा लबेगा उनकी खाल ला ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही कहेगा भाई सरकार का चित्र मेरे पास है, सबकी ऐसी की तैसी मैं खुंडी छुरी से ज़िबा करूंगा जी। आपकी 2 नंबरी लीगलाइज हो जाएगी भाई। ये हमने जिसे जान छुड़ानी थी। ये वही बात, ये बातें क्यों हैं? इसलिए कि ये जो करप्शन और ये सारा चोरी डकैती हो रही है। लेकिन ये एक बात नहीं, हम तो बड़े प्रोफेशनल अब खुद हैं, मैं हूँ, मेरे साथ दोस्त हैं, हम बैंक छोड़ के यहाँ पे आए थे, एजुकेशन में अपना बहुत अच्छी सैलरी छोड़ के आए थे, लेकिन इसलिए खिदमत के जज्बे से जो नहीं हो सकी। दूसरा मेरी जो बात थी वो ये थी, मीडिया पे आप सब देखते हैं कि एक बेटी, वो चाहे वो मरीम की शक्ल में हो चाहे किसी और शक्ल में हो, वो जब बाहर जाती है तो सारे आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट पे कि जी बेटी थी, उसका तकद्दुस पमाल हो गया और वो अदालत में गई है, पार्लियामेंट में गई है। देखें यहाँ पे सैकड़ों बेटियाँ, माएँ, बहनें जो हैं वो बैठी हुई हैं, उनका तकद्दुस किसी को नज़र नहीं आ रहा, उनकी पमाली किसी को नज़र नहीं आ रहा। जी यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ पर मुझे एक बात बताएं, कितने टीचर पार्लियामेंटेरियन हैं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं ना, तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? कौन बताएगा कौम को कि तुम्हारा बाप उस्ताद जो है वो ख्वार हो रहा है? हमारा निज़ाम ऐसा सर है कि वो... आपके इस तबके में जिससे ताल्लुक है मेरा और आपका, इसके कितने नुमाइंदे ऊपर हैं? नहीं है। तो सर हमारे लिए किसने बात करनी? जी हमने आपस में खुद ही खड़े होकर बात करनी है और हम कर रहे हैं। और कोई मोहसिन नकवी साहब को पैगाम दे दें, शायद उनको आपकी बात। जी वो पैगाम मुझे उन्होंने फरमाइश में भी कहा, मैंने अपनी तकरीर में एक शेर में एक बात कही थी। मोहसिन नकवी जो शायर थे,
انہوں نے ایک نظم لکھی تھی اور اس کے 2 شعر میں ان محسن نقوی کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے, جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے, تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو, وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے, یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی, مسلسل جبر سے محسن دلوں میں ڈر نہیں رہتے. یہ ان کی آواز تھی جو میں نے. استغفر اللہ. سر میں وہیں سب سے پہلے تو ایک بات, مہنگائی کے تناسب سے ہماری آلریڈی تنخواہیں بہت کم ہو چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے مہنگائی 2 سالوں میں کہاں پر چلی گئی ہے ہماری. اگر آپ کیلکولیٹ کریں مہنگائی کے تناسب سے 2019-20 میں جو چل رہی تھی, آج کیلکولیٹ کر رہے ہیں ہماری وہ 40 سے 48% کم ہو گئی. ہماری تنخواہیں بڑھائیں, ٹھیک ہے. اگر ہماری تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے, میں ایک ریکویسٹ کروں گا سرکار کو کہ ہمیں پھر ایک فتویٰ ایسا دے دیں کہ خودکشی حلال ہو جائے معذرت کے ساتھ. دیکھیں جی سرکاری ملازمین بھوکے مر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اب دوسری بات میں میری ایک بات یاد رکھیں سر, آپ نے یہ ایسی دکھتی رگ چھیڑ دی ہے سر, یہی امتحان ہے اور اسی میں سینہ تان امتحان میں کھڑے ہیں. امتحان میں کھڑے ہیں. دیکھیں اسی میں کھڑے ہونا ہے. دیکھیں سر میری بات سنیں, بھوک سے دیکھیں ہمارے جو ملازمین, اگر آپ ایک کلاس 1 کا ملازم لے لیں نا, اس کی 27-28 ہزار روپیہ چل رہی ہے اور وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے. او بھائی جان جن ظالموں کی بات کر رہے ہو کہہ رہے چنگا بندے گھٹن گے. چلیں اللہ کے بھی ملزم بنو گے, کیا باتیں آپ کرتے ہیں. چلیں میری بات سنیں, دیکھیں سرکار سیلری بڑھانی چاہیے سرکار کو, ہم کھڑے ہیں سراپا. پینشنر کے حوالے سے میں بات کروں گا. ایک پینشنر جو ابھی ہمارے یہاں پہ بزرگ کھڑے ہیں, وہ اپنی جوانی میں 20 سال کی عمر میں کالے گھنے سیاہ بال لے کے سرکاری ملازمت پہ آتا ہے. ساری زندگی محنت کرتا ہے, ملک کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ CNW میں کام کر رہا ہے, وہ سڑکوں پہ صفائی کرتا ہے, وہ ڈرائیور ہے, وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتا ہے. وہ کوئی بھی کسی بھی محکمے میں ہے, اس نے اپنی پوری زندگی اپنے سرو کی, اس کے بال سفید ہو گئے. سفید ہونے کے بعد اس کے بال جھڑ گئے, جھڑنے کے بعد اس کو شوگر بلڈ پریشر ہو گئی مہنگائی کے تناسب سے, تنخواہیں نہ بڑھنے کی وجہ سے. اس کے بعد اس کا آخری سہارا کیا ہوتا ہے کہ اس کو پینشن اچھی مل جائے, اس کا روزگار اچھا ہو جائے. وہ دوائی کتنی مہنگی ہو گئی ہے, وہ دوائی لے لے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے حکمران جو بیٹھے ہیں, جو نگران, اس کو بتائیے گا کہ ایک نگران حکومت آئی تھی اور اس میں ایک محسن بھی تھا, بس بات ختم ہو گئی. دیکھیں جی محسن کو ہم بتا رہے ہیں یہاں پہ کھڑے کہ محسن بنے, ملازمین کے محسن بنے, ملازمین کے محسن بنے, ستیلی ماں جیسا سلوک نہ کریں. اللہ کرے وہ محسن بنے. السلام علیکم سر. میں شیخ محمد آپ کیوں آ گئے یہاں پر, کیا پریشانی ہو گئی؟ پینشنر ہیں جی, ریٹائر آرڈر اینڈ کاؤنٹ سے, اور یہ پنجاب کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے پینشنوں کے ساتھ. باقی سب 3 صوبوں نے 17.5% کیا ہے. اور سب سے پینشن کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے روٹی دال کے ساتھ ادویات کی ہے, جو ادویات 300-400% بڑھ چکی ہوئی ہیں. میڈیکل الاؤنس بڑھنا چاہیے. 75 سال سے ہمارا گروپ انشورنس کی ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی جب کا پاکستان بنا ہوا ہے. اور یہ پاکستان پے اینڈ پینشن کمیشن جب کا بنا ہے, پے اینڈ پینشن کی برابر بڑھاتا. ایک وجہ بتاؤں آپ کو, برا نہ منائیے. جی جی. پچھلے 75 سال میں, یہ میں تلخ بات کرنے لگا ہوں, کریں کتنی جنریشنز آئیں اور ریٹائر ہو کے چلی گئیں. صحیح سر. جس وقت کوئی بھی سرکاری ملازم, یہ جو موجود اس وقت سرکاری ملازمین ہیں, میں انہیں کہہ رہا ہوں, یہ دھیان نہیں کرتے سر. جب یہ اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں, کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ پینشنر کو کہتے ہیں بابا جی ذرا پرا ہونا, اور پرا کرتے کرتے وہ خود پرا ہو جاتے ہیں, کیونکہ پیچھے سے ایک اور میرے جیسا نوجوان آ گیا اور کہتا ہے بابا جی پرا ہو. میرے پیچھے سے کوئی اور آ جائے گا, وہ مجھے کہے گا بھائی جی پرا ہو, بابا جی پرا ہو. سر جب آپ سروس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تب آپ پینشن کی آواز نہیں اٹھاتے. نتیجتاً جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہی درد آپ کو اٹھانا پڑتا ہے جو باقی اٹھا رہے ہیں. 16 تک نا, یہ کیا کریں, ان کے اختیارات ہی کوئی نہیں. یہ بیوروکریٹ کرتے ہیں ہمیشہ, ان کے اختیارات اتنے ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریٹ کی ساری 2 نمبریوں کی فائلیں ان کے پاس ہوتی ہیں. نہیں, آج تک کسی ڈی سی کے جانے کے بعد ڈی سی کی فائل کھلی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ کھلتے نہیں دیتے. سر کیوں نہیں کھلنے دیتے؟ ریکارڈ تو آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. سر میری بات سنیں نا, اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ کوئی میری ماں کو نہیں نوچے گا, ریاست ماں ہے نا, اس کو کوئی نہیں نوچے گا, ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. سر نہیں کھڑے ہوتے نا. یہ بات تو دوسری طرف وہ ٹرمینیٹ کر دیتی ہیں ایک آدمی. بس یہ مسئلہ ہے نا سر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پینشنر جو ہے نا, ملازمین ہے, ان کے ساتھ برابر بڑھانی چاہیے پینشن. ٹھیک ہو گیا جی. سر جی, پروفیسر ندیم اشرفی میرا نام ہے. سر یہاں پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کی طرف سے میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور یہ جو جتنی یونین یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں پنجاب کا, میں اگیگا کا جنرل سیکرٹری ہوں. دیکھیں, میں بیسک صرف ایک نقطہ آپ دیکھیں
वहाँ पे रनिंग बेसिक पे हुआ, यहाँ पे आपने इनिशियल बेसिक पे तनख्वाहों में इजाफा किया, वहाँ पे 17.5% हुआ, यहाँ पे आपने 5% किया। इस एक छोटे से नोटिफिकेशन ने पूरी कम्युनिटी में अनरेस्ट पैदा कर दी। ये पूरी कम्युनिटी इस वजह से परेशान है। मैं ग्रेड 19 में बैठा हूँ और जो डिप्टी कमिश्नर है वो ग्रेड 18 में बैठा है। मुझे आपने कोई सूट में, मैं भी स्टेट का उतना ही वफादार हूँ, उसको आपने फॉर्चूनर पूरे पंजाब के 36 अजला में फॉर्चूनर आपने दिए हैं। आप उस्ताद की इज़्ज़त इस मुल्क में ये है, ये डेमोक्रेटिक ये मुल्क है। और यहाँ पे आप देखें आवाज़ किस तरह से दबाई जा रही है। यहाँ पे बैठे हैं, इनको इतना ख्याल नहीं आता कि यहाँ पे कोई वाशरूम नहीं है, यहाँ पे पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। यार हम क्या इस स्टेट के मेंबर नहीं हैं? क्या हम इस स्टेट के शहरी नहीं हैं? हम ये जितने सरकारी मुलाजिम हैं सब पढ़े लिखे हैं, और जितने सरकारी मुलाजिम हैं सारे इस मुल्क के वफादार हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, वीडियो अपॉलॉजी, मैं बड़ा नालायक हूँ। ये सारी नालायकियाँ मैं ही करनी है, मेरी जिम्मेदारियाँ ने। ग्रेड मैटर नहीं करता कि कौन किस ग्रेड का मुलाजिम है, उसको सरकार का डंडा किसने दिया हुआ है, डंडा किसके हाथ में है? सर जिसके हाथ में, जो इनका बयान है, जिसके हाथ में डंडा मौजूद होगा मेरे भाई, उसको फैसिलिटीज हैं, और जो डंडे के बगैर होगा उसके लिए तकलीफ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुझे बार बार एक पंजाबी का मुहावरा जो है वो नॉक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो चलें सुना देते हैं। वो कहते हैं कि अन्नी पे पींदी है तो कुत्ते पे चढ़ देने। और इस मुहावरे का आज के प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। दिल करे तो बना लेना, मैं नहीं बना सकता भाई। आज हम पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन, यानी पंजाब को खिदमत करके आगे चलाने वाले जो मुलाजमीन हैं, उनसे बात करें। और बदकिस्मती से इसमें बड़ी तादाद असातिज़ा की है जो हमारी जनरेशन्स को पाल रहे हैं। जिस कौम में उस्ताद रो रहा हो, उस कौम के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? तो आज, बल्कि आज का प्रोग्राम अपने प्यारे असातिज़ा और उनके साथ मौजूद सरकारी मुलाजमीन के नाम, यहाँ तक कि पेंशनर्स के नाम भी, जो बेचारे एक मफलूकुल हाल नहज पर पहुँच चुके हैं, सबको एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब मोहसिन नकवी साहब ने अंधे कुएं में फेंक दिए हैं। जाओ हाथ मारते रहो, और याद रखना कि मोहसिन आया था। समझते हैं इनकी बिपता, इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। जी सर, मेरा नाम वकार हुसैन अवान है, मैं सदर हूँ पंजाब टीचर यूनियन जहानिया से। सर मैं सर आपने जितनी बातें अपना मसला जी मोटा सर, मोटा बताएं। लीव इनकैशमेंट और पेंशन और ग्रेजुएट के बारे में तो काफ़ी डिस्कशन हो चुकी। मैं सर ये आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि हम जो असातिज़ा कराम है, स्पेशली हम लोग एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स हैं, और सर प्राइमरी स्कूल में हम तैनात हैं। हमारी तनख्वाहें कितनी हैं सर? इमरान भाई, हमारी तनख्वाहें सर पीएचडी स्कॉलर प्राइमरी स्कूल में और बेचारा बिपता कर रहा है कि हर मेरी ध्यान सर 38 से 40 हज़ार हमारी तनख्वाह है। आप खुद सोचें, इस दफ़ा मेरा घर का बिल जो है वो 8,000 आया। आप मुझे बताएं मैं अपनी फैमिली को कैसे प्रमोट करूं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊं? सर 38 से 40 हज़ार, अगर मैं यही अपनी एमफिल की जो मेरी डिग्री है, ये मैं इसे लेके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाता हूं तो मुझे अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि मैं 1 से 1.5 लाख रुपए ईजिली सैलरी ले सकता हूं किसी अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर मैं फ़ॉरेन में चला जाता हूं तो सर इससे भी अच्छी सैलरी। आपने देखा लास्ट टाइम भी हमारी पाकिस्तान से जो यंग जनरेशन थी वो अब अच्छे मुस्तकबिल के लिए डूब गई, और अब हम यहाँ सड़कों पे असातिज़ा कराम रूल रहे हैं। और हाँ जी, सर क्या इसमें गिरामी है? खालिद जो है संगेड़ा, मरकजी सदर आपका पाकिस्तान, चेयरमैन हकीका पंजाब। हमें आप परेशानी तो ये है कि सारे सूबों में और मरकज़ में जो फ़ैसला हुआ है पंजाब गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। कितने दुख की बात है कि बलूचिस्तान सबसे पसमानदा है, लेकिन वो रनिंग बेसिक पर दे रहा है। हमने इस्लामाबाद में जद्दोजहद करके 35% और 30% लिया था, 17.5% पेंशनर के लिए लिया था। अब बहुत बड़े जुल्म की बात है कि हमारा पैसा हमारे साथ इंक्रीमेंट किया, इन्होंने जो है एग्रीमेंट किया हुआ है कि
जो है लीव एनकैशमेंट का भी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਲੇ ਤਲੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀਣ ਮਰਨ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अल्लाह पाकिस्तान से रहम करे, अल्लाह पाकिस्तान से रहम करे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बावलपुर से फ़ख्रुर रहमान अज़हर जी। क्या हाल है? आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कैसा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ? नहीं असी तो जब काम शुरू हो उसदे आके असी बैठे हैं इत्थे। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? बहुत कुछ हो गया। हुकूमत कहती साढ़े को पैसे ही नहीं है। नहीं सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह अल्लाह। नहीं वो कहते हैं कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जनू के आसार और कुछ लोग दीवाना बना। अभी आप सवाल कर रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं है। हर डिप्टी कमिश्नर को 2.5 करोड़ की गाड़ी देने के पैसे हैं। नहीं CS नहीं सिस्टम हम चलाते हैं, वो नहीं चलाता। DC सिस्टम नहीं चलाता, क्लर्क सिस्टम चलाता है। कान में बताऊं अफसरों की बुनियादी ज़रूरत होती है किसी भी शख्स को मामलात को चलाने के लिए। जी जी बिल्कुल सारा सिस्टम है। अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी ये पंजाब तक मामला खड़ा है। अभी हमारे ये सैयदा साहब बाचा साहब जो हैं ये पूरे मुल्क तक मामला फैलेगा। ये इन्होंने टेस्ट केस दे दिया है कि इस वक्त जो लिव इनकैशमेंट है इसके बाद कम्यूटेशन पे कब्जा करेंगे। जिस तरह बहबूद फंड में हमारे करोड़ों रुपए काटे जाते हैं हर महीने और हम पर खर्च नहीं होते, उसके लिए मरना पड़ता है। ये गवर्नमेंट के जो अपने मामला हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो मुस्तहक है उसके लिए परसेंटेज होना ज़रूरी है। उसके लिए 14,000 रुपया, अफसरों के बच्चों के लिए 30-30 हज़ार, उससे भी ज़्यादा है। तो ये PN से लेकर खाकरूफ से लेकर चीफ सेक्रेटरी साहब मुतासर हैं। और मैं ये समझता हूँ जो दुख की बात है, मुझे आई एम आल्सो बिलोंग टू पंजाब, मैं पंजाबी हूँ जिसमें रहता हूँ। दुख की बात है कि जिस घराने पर 4 दफ़ा वज़ीर आज़म शिप पर हमारे एहसानात हैं, उसके अपने घर में जिन्होंने आग लगाई है, फर्जंद अर्जमंद है, उनकी एफिलेशन सियासी तौर पर जो हमारे सैयद बादशाह हैं, सैयद आले नबी औलाद अली हैं नकवी साहब, उनकी एफिलेशन ज़ाहिर की जाती है कि पूरे देखिए ये अगर हालात मुल्क के ख़राब के, पंजाब के तो ख़राब नहीं है। आप हमारे जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीचर, उस्ताद, मुझे बताएं मेमारे कौम आज सड़कों पर बैठे हैं। जो मेमारे कौम पैदा हमें मेमारे कौम बनाने वाले जिन लोग हैं वो सड़कों पर बैठे। आज उस्ताद, बेटियाँ, असातिज़ा मैंने ये बात पिछले दौरे हुकूमत में भी कही क्यों उस्ताद नूं ते माफ़ कर दियो, तुहानू अल्लाह पूछे और तुहानू अल्लाह हदायत देवे, उस्ताद ते रहम कर लो। मैं समझता था कि ये पिछले भाई साहब जो हैं वो कोई बहुत नालायक आदमी है क्योंकि उस्ताद तो तब भी सड़कों पे फिर रहा था। अब पता चला है कि नहीं भाई नहीं, आगे जैसे जैसे आगे चलते जाओ मसाइल इससे ज़्यादा खूबसूरत और शदीद हैं। देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपका बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप तशरीफ़ लाए, तमाम लोगों की आप आवाज़ बने। लाहौर जो है उसको आपने जगा दिया। हुजूर इसमें बात यह है कि जिस कौम का उस्ताद सड़कों पे आ जाएगा तो उसका उस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। जब आप उस्ताद का काम है, जिस उस्ताद ने इनको पढ़ा के ईवानों पे खड़ा कर दिया, आज ये उन्हीं साजा का ये काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि फिर अगर मैंने माफ़ कर देना, अगर उस्ताद ने पढ़ा के ऐसे लोग प्रोड्यूस किए हैं ना तो फिर उस्ताद के पढ़ाने में भी मसला था तो वो डेफिनेट आज उसी लिए हम लोग सब इकट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पे। उसमें ये बात है जी पाकिस्तान एक है। हैरान कुन बात है कि ये कैसी गवर्नमेंट है कि फेडरल का एक डिसीजन है, तमाम सूबों ने मनवान तस्लीम कर लिया। अब पंजाब है ये मानने को तैयार नहीं है। दूसरा दिन है कोई ऐसा ईवान में बंदा नहीं बैठा हुआ जो यहाँ पे आके देख ले। ख़वातीन बैठी हुई हैं, मर्द बैठे हुए हैं, असाजा बैठे हुए हैं, बेशुमार महकमों के लोग बैठे हुए हैं। ये उनके साथ दानिस्ता तौर पर ज़्यादती की जा रही है। और नाज़रीन ये बदकिस्मती का मामला है, बदबख्ती का मामला है कि आज वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दिल पंजाब और उसके रूह रवा लाहौर में सरकारी मुलाजमीन अपनी अपनी बुनियादी ज़रूरियात के हसूल के लिए बिबता और तरले करते नज़र आ रहे हैं। अल्फाज का चुनाव सख्त हो सकता है लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि यार रोटी तो खा लेन दो, ਉਹ खुदा दे बंदे हो जी ते लैन दिओ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ ਧੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦਿਓ।
اور بالآخر وہ اس ملک کو تو چلا لینے دو. لیکن میں نے ان سڑکوں پر نابینا افراد کا احتجاج دیکھا تھا. آج مجھے لگتا ہے کہ نابینا کسی بڑے منصب پر فائز ہو گئے ہیں. یہ بدبختی ہے, یہ بدقسمتی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم.